So hello and welcome back to the channel. My name is Nishant Srivastava and I am your verbal ability guide for IP Math, CUD and other UG entrance examination. For any detail inquiry, you can call us at 75248333567. The Telegram link is in the description. Do join the Telegram channel. If you are unable to find, you can search I am Blaster on Telegram and you will get to the channel. I hope your preparations are going well. कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन जस्ट सिंपली कमेंट ऑन व्हाट्सएप एस 7524833567 and today we are coming back with the mock series that I have started a few days earlier. Now today is I think mock number 9 that I have made for you, and I have included 30 questions in the mock today. I've increased the number of questions from 15 to 30, and the today's paper is generally Rohtak, GIPMAT and CUT based paper. It's not for Indore because Indore का पेपर का लेवल थोड़ा सा बेटर होता है इससे. So I have not included Indore question. I have included Rohtak because Rohtak एग्जाम आने वाला है. CUD because CUD भी आने वाला है. and GIPMAT इसके बाद जो दूसरा एग्जामिनेशन है उस GIPMAT का है. Indore will be the later on seen, and we will see the Indore later on in the upcoming mocks. So let's hop in the session. First question of the day: the police are dragging its feet in investigating this case allegedly because influential people are involved in the crime. It's the question. इसमें करना क्या आपको? Okay, let me just first clear the directions. ये अंडरलाइन कुछ फ्रेज है, इसकी आपको मीनिंग इन सेंटेंसेस में मिलेगी एंड यू नीड टू फ्रेम आउट द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. दैट्स सिंपल. ओके. The police are dragging feet in investigating the case allegedly because influential people are involved in the crime. So, सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रैगिंग इन द फीट की मीनिंग क्या होती है? इट्स वेरी केयरफुली, something that is done very carefully. Now, the police are deliberately investigating this case slowly, allegedly, because the influential people are involved in the crime. I think it is right. Let me check the other statements also. The police are trying to investigate the case as soon as possible. No. Dragging the feet very carefully का केस में हमेशा slowly आएगा. As soon as possible तो नहीं हो सकता यहाँ पे. And this is the wrong option. The police are dragging the innocent people. ये कोई बात, it's not the meaning of dragging its feet. So obviously incorrect. The police are not ready to investigate. Are not ready to investigate की यहाँ बात नहीं की. Dragging its feet मतलब they are investigating but very carefully and slowly. So option number A meets our demand. So option number A is the right answer. Moving to question number 2 of the day. Same directions are same, and you need to just find the meaning of this and induce in our options. So wearing your heart. What's the meaning of wearing your heart is? Its meaning is expressing one sec. Okay, it's expressing openly. अब openly का मतलब यहाँ पे है in full, with full heart, or to express your feeling to someone with a open heart, with a full authenticity. ठीक. openly मतलब खुल्लम खुल्ला नहीं. यहाँ पे openly का मतलब ये है to with your full heart. Okay, so let's grab to the options. Option number A is wearing. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. Wearing your heart on sleeve can backfire at the workplace because you may seem to be unprofessional. Option number A, wearing too tight sleeves can backfire at a workplace because you may seem unprofessional. अब यहाँ
एक्सप्रेसिंग ओपनली की बात मैंने की थी मीनिंग में, लेकिन यहाँ टाइट स्लीप्स की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आई डोंट थिंक विल। नाउ ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूं, एक्सप्रेसिंग योर सेंटिमेंट्स टू ओपनली कैन बैकफायर एट द वर्क प्लेस बिकॉज यू मे सीम अनप्रोफेशनल। expressing your sentiments too openly, option number B is the correct option. Let's see also boasting your personality. Boasting about you, boasting मतलब क्या, बढ़ा चढ़ा के बताना। boasting about your personality can backfire at the workplace. No, boasting यहाँ पे नहीं होगा because expressing openly था मीनिंग boasting। यहाँ भी boosting your entire personality, यहाँ boosting यूज किया गया। boost मतलब जस्ट बूस्ट करना किसी चीज को, ओके। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, सेम डायरेक्शंस विद वर्ड ब्लू, हॉट एंड कोल्ड। नाउ द क्वेश्चन सेज द एडिटर ब्लू हॉट एंड कोल्ड over the story for a few days and then finally decided to publish it. हॉट एंड कोल्ड का मीनिंग यहाँ क्या होगा? सबसे बड़ी बात, ये फ्रेज का मीनिंग क्या होगा? इस फ्रेज का मीनिंग होगा having a different or a wavering opinion. Okay, different or wavering opinions या thoughts will be a better option. ठीक है, different or wavering thoughts. Now let's hop into the options. The editor spoiled the story for a few days and then finally decided to publish it. Spoiled की बात की है यहाँ पे, वेवरिंग डिफरेंट थॉट्स है। यहाँ ये नहीं कहा कि स्टोरी खराब कर दी है। स्पॉइल का मतलब है स्टोरी डिस्ट्रॉय कर देना, खराब कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए विल नॉट सूट। द एडिटर ट्राइड टू इग्नोर द स्टोरी, इग्नोरेंस की बात की गई है, नो। थॉट्स डिफरेंट होनी चाहिए, नो। एडिटर वांटेड द स्टोरी टू बी डिलेड, डिले की बात की गई है, डिले की कोई बात नहीं है। इट्स नॉट द मीनिंग ऑफ द ब्लू हॉट एंड कोल्ड। द एडिटर वेवर्ड बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस ओवर द स्टोरी for a few days and then finally decided to publish it. Wavered between different opinions. Option number D is the right answer. ये blue hot and cold की मीनिंग से completely मैच करता है। Now moving to next question. Next question is a fill in the blanks type question with double fillers. So the question says, from very ancient times, the Indian society dash elitist and power, wealth and education were mostly dashed to the upper caste of this society. क्या कहना चाह रहा है वो? Okay, let me make one thing clear, that you need to give yourself marks +4 for every correct answer and -1 for every incorrect answer. ये आप हर मॉक में बिना कहे अपने आप से करते रहें। If you are watching this video, do give your marks. अपने आप को मार्क्स जरूर दीजिए ताकि आप अपनी पोजीशन जान पाएं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू एबल टू जस्ट सॉल्व। And if you are able to solve more than 70% question, then you're good to go. If you aren't able to solve more than 70%, if you are greater than 70%, excellent, ठीक है। तो 60 से 70% क्वेश्चन कर रहे हो तो गुड है, ठीक है। अगर 60% से कम कर रहे हो, लेस देन 60%, देन यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है। यू नीड टू वर्क हार्ड, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी जरूरत है, ताकि 60 से 70 के बीच में आप पहुंच जाओ एटलीस्ट। बिकॉज यहाँ पे अच्छा सिलेक्शन है, यहाँ पे सिलेक्शन है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप एक अच्छे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। एंड इफ यू आर जस्ट टारगेटिंग सम कॉलेज, देन यू कैन गेट थ्रू इट। So coming back to the question, from very ancient times the Indian society dash, एटलिस्ट की मीनिंग क्या होती है? एलिटिस्ट की मीनिंग क्या होती है? एलिटिस्ट की मीनिंग जो होती है वो एलाइट से रिलेटेड है, अ ग्रुप ऑफ एलाइट पीपल, ठीक है। तो इट्स सेइंग फ्रॉम अ वेरी एंशिएंट टाइम द इंडियन सोसाइटी हैड बीन, ही हैज ऑलवेज बीन, या हैज ऑलवेज, या हैड हैव। देखिए एक ऑप्शन तो हैड हैव ऑलवेज वाला इनकरेक्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर, इसको हैड हैव वाला सीन बाद में देखते हैं, अभी मैं बताता हूं ऐसा क्यों है, क्या है, ओके। वेल्थ elitist and power, wealth and education were mostly, now second option, jailed,
जेल हो गई थी, नहीं, नो नो, कन्फाइंड, या कन्फाइंड हो सकता है, दे वर मोस्टली कन्फाइंड टू द अपर कास्ट ऑफ द सोसाइटी, स्टॉप्ड, नो, रिस्ट्रिक्टेड हटा दिया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच खा रहा है, एंड हैज ऑलवेज बीन यूज किया गया बिकॉज ये स्टेटमेंट बता पास के लिए रहा है, लेकिन इट्स एन प्रेजेंट स्टेटमेंट, इसीलिए हैड नहीं यूज किया गया, हैज यूज किया गया है प्रेजेंट को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो हैज ऑलवेज बीन कन्फाइंड इन द सेकंड फिलर, यहाँ पे कन्फाइंड होगा। तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन मतलब पहला ही फिलर से ही हो, दूसरे फिलर से भी आपको अगर सिग्नल मिल रहा है, यू जस्ट नीड टू गेट टू द करेक्ट ऑप्शन एज सून एज पॉसिबल। सो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, a leading Indian industrialist in a recent article on ways to strengthen India's economy dash attention to the problems of inflation and industrial sickness dash. So let's hop into the options. A leading Indian industrialist in a recent article on ways to strengthen India's economy has drew नहीं हो सकता because drew is the another form of the verb, ये नहीं होगा। हैड हैव ड्रॉन भी नहीं हो पाएगा बिकॉज हैड हैव का केस जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। ये जब मैं आपको अभी क्या कहते हैं आगे जाके जब पढ़ाऊंगा टेंसेस, तब मैं आपको हैड हैव का केस समझाऊंगा इसके बाद, ओके। अब आपके पास बचे सिर्फ दो ऑप्शन, हैव ड्रॉन, हैज ड्रॉन, ठीक है, इसी में से आपको चूज करना है। नाउ लेट्स move to the second pillar, attention to the problems of the inflation and industrial sickness among other things या among things, पहली बात तो ये बताइए amongst other things आ जाएगा, तो ये मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द स्टेटमेंट विल बी लाइक a leading Indian industrialist in the recent articles on ways to strengthen India's economy has drawn attention to the problems of inflation and industrial sickness amongst other things. So option number C will be the right answer. और has का यूज इसीलिए किया गया बिकॉज has denotes present tense, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, so it says while they have not yet been able to change the genetic order of the gene in germs, they are optimistic and are dash that in the near future they dash be successful in achieving this feat. फिट मतलब यहाँ पे टास्क से रिलेटेड है, टास्क से रिलेटेड है, ओके। नाउ लेट्स हॉप इनटू द ऑप्शंस। टू होल्ड आउट पहला है, लेट मी चेक। While they have not been yet able to change the genetic order of the genes in germs, they are optimistic and are to hold out. No, holding to नहीं होगा, होल्डिंग आउट हो सकता है इन्हीं दोनों में से एक है। So it's holding out that in the near future they may हो जाता, may वाला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया, इन्वॉल्व हो नहीं सकता तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा ऑप्शन नंबर डी, दे माइट। सो द स्टेटमेंट विल बिकम लाइक while they have not yet been able to change the genetic order of the gene in germs, they are optimistic and are holding out that in the near future they might be successful in achieving this task or feat. So option number D is the correct answer for question number 6. Now moving to question number 7, this is the spotting error type question. आपको इसमें से A B C D चार स्टेटमेंट्स दिए हैं, चार मतलब फ्रेजेस टाइप के दिए हैं, सेंटेंसेस दिए हैं आपको, इनमें से यू हैव टू जस्ट पिक द इनकरेक्ट पार्ट फ्रॉम द सेंटेंस। A B C D में से जो भी पार्ट इनकरेक्ट है, यू हैव टू पिक दैट वन आउट। So insiders says Adityanath government is exercising unusual caution before ordering action on the inquiry report. देखिए यहां पे बहुत छोटी सी मिस्टेक एक है और वो है पार्ट ए में। क्या मिस्टेक है? इनसाइडर्स सेज, यहां पे एक वर्ड आ सकता है, या तो द आदित्यनाथ गवर्नमेंट हो जाती, द आदित्यनाथ गवर्नमेंट हो जाती, आदित्यनाथ
गवर्नमेंट, एक स्टेटमेंट ये सही हो सकता था, या फिर इसका ऑल्टरनेट में दूसरा स्टेटमेंट हो सकता था कि आदित्य नाथ्स गवर्नमेंट। अब यहाँ पे द आदित्यनाथ लिखा, आदित्यनाथ तो है नहीं, तो द अगर इंट्रोड्यूस हो जाता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। सो ऑप्शन नंबर ए इज द एरेनियस ऑप्शन, इसमें एरर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर फॉर अवर क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको इसका रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। आर्टिकल यूज होगा इसमें द, या फिर अपस्टॉपी एस यूज हो सकता था। सो नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब आप लोग पढ़िए एक बार एंड देखिए कि इसमें क्या ऑप्शन बन सकता है। तब तक मैं जरा आई हैव सम वाटर। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा एंड ऑप्शन भी निकाल लिया होगा। लेट्स सी। द नोटिस आस्क्ड ऑफिसर टू क्लैरिफाई इफ दे हैड टेकन permission from their respective divisional commissioners to participate in the demonstration। क्या हो सकता है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, ये भी एरर वाला क्वेश्चन है। फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैड रिपोर्टेडली assured the unions he will not corporatize and privatize the ordnance factories। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है, इस पार्ट में, बी वाले पार्ट में। बी इज द राइट आंसर। अब क्यों, क्या प्रॉब्लम है, आई विल एक्सप्लेन यू। ये एक ग्रामर का पोर्शन है। सो विल इज द, विल जो जहां भी यूज होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तरीके से यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग है वो पास्ट में होती है। विल प्रेजेंट को फॉर्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। वैसे तो विल इज अ फ्यूचर स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन फॉर्म की बात करें तो वो प्रेजेंट को डिनोट कर सकते हैं, ठीक। अब हैड इज द प्रेजेंट, सॉरी, हैड जो है वो पास्ट को डिनोट करता है। द स्टेटमेंट इज इन द पास्ट, द फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैड रिपोर्टेडली एश्योर्ड, उन्होंने एश्योर किया है, द यूनियंस अश्योर्ड, यूनियंस को एश्योर किया है कि वो आगे ही वुड, ही विल नॉट। सो पास्ट का स्टेटमेंट है अगर, तो यहां पे वर्ब की दूसरी फॉर्म लग जाएगी, दैट इज वुड। सो द स्टेटमेंट विल बिकम लाइक, लेट मी जस्ट इरेज द बुलशिट। So the statement will become like like former defense minister had reportedly assured the unions he would not corporatize and privatize the ordnance factories। Sure. Option number B is the right answer। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। have stolen the money from the students pockets were searched by the class teacher। इसमें क्या हो सकता है? ये स्टेटमेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है वो हर एक बच्चा इसका आंसर दे सकता है इजीली, जिसने भी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ी वो भी दे सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। कैसे? यहाँ हैव की जगह हैविंग हो जाएगा, इसकी जगह पे हैव की जगह पे। अब ये क्या है फंडा? ये पूरा जेरेंट का फंडा है, ये भी आपका ग्रामर का पार्ट है। ये जब मैं आपको जेरेंट्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा बेटर, बिकॉज इसके लिए ये पूरा एक आवर टू आवर से भी ज्यादा का पूरा सेशन है इसका, एंड इसको एक्सप्लेन करने में टाइम बहुत इन्वॉल्व होता है। और फिलहाल ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, बिकॉज एग्जाम्स आर ऑन दी वर्ज। सो जितनी भी नॉलेज आपके पास है प्रेजेंटली, जस्ट यूज दैट नॉलेज इन मॉक्स। मॉक्स ज्यादा से ज्यादा लगाइए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने ग्रामर पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, थोड़ी आती है, ज्यादा आती है, अभी तक आपने जो भी किया, नया कुछ मत करिएगा प्लीज। डू नॉट डू एनीथिंग न्यू, डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू। न्यू से आपका कोई वास्ता नहीं रखना है फिलहाल। यू डोंट नीड एनी न्यू थिंग्स इन योर लाइफ टिल नाउ एंड टिल एग्जामिनेशन, जब तक आपका एग्जाम नहीं जाता।
कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी, जस्ट प्रैक्टिस द ओल्ड दैट यू हैव लर्न और दैट यू हैव नोन टिल नाउ। ठीक है, सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और स्टेटमेंट बन जाएगा हैविंग स्टोलन द मनी द स्टूडेंट्स पॉकेट्स वर सर्च्ड बाय द क्लास टीचर। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ एक स्टूडेंट की बात हो रही है, सिंगल स्टूडेंट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 किस टाइप का क्वेश्चन है? आई मस्ट एक्सप्लेन यू। देयर इज अ क्वेश्चन स्टेटमेंट displayed in front of you and there is italics underlined words that has been marked, and वही वर्ड्स आपको ऑप्शन में दिखेंगे। आपको स्टेटमेंट के अंदर करेक्ट ऑप्शन यूज करके एक करेक्ट और कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट बताना है, जो कि ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली दोनों करेक्ट। ठीक है, नाउ climate scientists say that meteorological factors could have been played an important role in the high pollution level detected in the city। तो इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है? कुड हैव, प्ले तो नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली नॉट होगा, क्योंकि इसमें कुड यूज किया गया है जो कि एक मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब है। इसके साथ हैव यूज किया गया है जो कि एक मेन वर्ब है। क्या है ये? एक सेकेंड, इट्स अ मेन वर्ब, ये एक मेन वर्ब है। ठीक है, और इसके साथ ईडी वाला फॉर्म लग जाता है। ठीक है, प्लस ईडी। मॉडल वर्ब को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। सो कुड हैव बीन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, कुड हैव प्लेड तो होगा। ठीक है, ईडी लगना है तो प्लेड तो होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एंड अभी 3 बचे हैं। कुड हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, आ इंपॉर्टेंट रोल नहीं हो सकता, एन की बात की गई यहाँ पे, इसलिए आ नहीं लग सकता, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। नाउ कुड हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा हाँ, वर्ब के बाद यहाँ ईडी वाला फॉर्म लगता है, ना कि बीन, तो बीन कैंसिल हो जाएगा, जिसमें बीन नहीं होगा वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो दोनों में नहीं है। लेट्स सी, कुड प्लेड एंड यहाँ पे हैव की कमी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी खाली बचता है, कुड हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। इसी तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके निकालने हैं। अगर आपको ये रूल पता है कैसे यूज करना है, सो आप कर लेंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ यहाँ वर्ब लगा है, इसके साथ ईडी वाली फॉर्म आ जाती है। बस बीन बीन ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा, एंड लगा ही रहेगा। प्लेट के सही लिखा हुआ है, ईडी वाली फॉर्म इसके साथ में, जहाँ पे प्ले नहीं है। ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो ईडी वाली फॉर्म नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए कॉन्टेक्स्ट आउट हो गया। ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए तो यहाँ पे आ यूज किए गए, एंड नहीं यूज किए गए, ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए, अगर कुड प्लेड, कुड हैव की कमी है यहाँ पे, तो हैव नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी रूल आउट हो गया। बचा ऑप्शन नंबर बी, कुड हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। लेट्स सी व्हाट्स इन क्वेश्चन नंबर 12। Economists have predicted that countries' economic growth will fall to as will fall to as low as 8% this year। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा, ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन। ऑप्शन से देख रहे हैं, एज लो एज 8%, यही सही होगा। एज लोअर्ड 8% नहीं हो सकता, लो एज 8% भी नहीं हो सकता, एज लोअरिंग भी नहीं हो सकता। सो इट विल बी लाइक, स्टेटमेंट विल बी लाइक, economists have predicted that the country's economic growth will fall to as low as 8% this year। So option number A is the right answer for this question। Coming to question number 13, 13th question, they would have appreciated your efforts if you had informed them। क्या होगा इसका आंसर? They would have appreciated your efforts if you had informed them। अब देखो यहाँ पे क्या है, would have appreciated your efforts, ये पास का स्टेटमेंट है। ठीक है, वर्ब भी यहाँ पास की लग रही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑलरेडी ये करेक्ट होगा, यहाँ पे कोई चेंज रिक्वायर नहीं है। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको कभी भी कोई भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है आपका जनरल
सो वर्ब, नाउन, आर्टिकल्स, इन तीन चीजों का बहुत ख्याल रखना है। मेजर क्वेश्चन आपके इसी पोर्शन से बनेंगे जहां पे वर्ब्स का रिलेशन कुछ ना कुछ होगा, या नाउन्स का रिलेशन होगा, या आर्टिकल्स का कुछ रिलेशन होगा। इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली कहीं से क्वेश्चन बनेंगे तो एडजेक्टिव से बन सकते हैं आपके, ठीक है। एंड और भी चीजें हैं, वैसे तो एडवर्ब भी बोल सकता हूँ, प्रोनाउन भी है, बहुत से वर्ड हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अच्छा हाँ, वर्ब में अगर आपको देखना है तो क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशन है उसको जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है जाता है। तो वर्ब टॉपिक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, नाउन भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, और एडजेक्टिव इसको कॉम्प्लीमेंट कर जाता है कभी कभी, मतलब इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। फिलहाल तो अभी मैंने जहां तक देखा है सीयूटी में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेजरली आते हैं मतलब बहुत कम। हाँ, लेकिन आपको रोहतक और उसमें सॉरी इंदौर में ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आसानी से। इसमें एडजेक्टिव का भी रोल होगा, तो एडजेक्टिव भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो थोड़ा मैंने आपको ग्रामर के बारे में बता दिया कि आप क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे आपको एक गो थ्रू कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? Same question, directions are same. Your suggestion is not different dash sorry dash नहीं है, for that of the other employees. क्या कहना चाह रहा है? देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ने से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, यहाँ फॉर नहीं होगा, यहाँ कुछ और अगर फॉर की जगह हो जाए तो काम चल जाएगा। योर सजेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नहीं होगा, ये ऑफ वाला पार्ट हट जाएगा, इन नहीं होगा, ये हट जाएगा। अब ये बचे ऑप्शन नंबर ए हट गया, ऑप्शन नंबर डी हट गया। We are left with option number B and option number C only. So your suggestion is not different from that of others. ये that of other बताइए। देखिए अगर यहाँ पे स्टेटमेंट ये खत्म हो जाता, if the statement would have full stopped here only, तो यहाँ पे others will be correct हो जाता, बट फिलहाल ये गलत है, इट इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे अदर लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज यहाँ पे ईएस एम्प्लॉयज प्लूरल फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे हम एक के बाद एक प्लूरल फॉर्म नहीं यूज कर सकते, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज की गई। ओके, अदर्स एम्प्लॉयज नहीं कह सकते, अदर एम्प्लॉयज होगा या अदर्स एम्प्लॉय होगा, ठीक। सो वी कांट यूज प्लूरल प्लूरल और सिंगुलर सिंगुलर एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। द ग्लोबल इकोनॉमी हैज नो ब्राइटर स्पॉट with only America and China add a substantially amount to global GDP, sorry GDP। क्या है? add गलत है, यहाँ पे एडिंग हो जाएगा, ऑप्शन से देखिए पता चल रहा है, तो एड वाला ऑप्शन तो हटा ही दो। एडिंग 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 इसमें तीनों में है, ठीक है। एडिंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट, अब देखिए यहाँ पे डबल टू टू वाला नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया। अब एक में ग्लोबल यूज हुआ है, एक में ग्लोबली यूज हुआ है। जस्ट रीड द स्टेटमेंट। द ग्लोबल इकोनॉमी हैज नो ब्राइटर स्पॉट विद ओनली अमेरिका एंड चाइना एडिंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट टू ग्लोबल जीडीपी, कि ग्लोबली जीडीपी होगा, ग्लोबल जीडीपी होगा, यस। तो ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप कभी भी रीडिंग से ही निकाल सकते हैं, यू डोंट नीड ग्रामर फॉर ऑल द टाइम्स। इजी क्वेश्चन के लिए ग्रामर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, टफ क्वेश्चंस के लिए ग्रामर की रिक्वायरमेंट बन जाती है। सो द स्टेटमेंट सेज लाइक द ग्लोबल इकोनॉमी हैज नो ब्राइटर स्पॉट विद ओनली अमेरिका एंड चाइना एडिंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट टू ग्लोबल जीडीपी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, नाउ इट इज अ पैराजंबल टाइप क्वेश्चन। अब पैराजंबल है तो आपको इसको जिम्बलिंग सेट करनी है बस, एंड यू विल गेट टू द आंसर। So option number A says mission that will help the scientists to understand, mid statement है ये। NASA has selected a $42 million ओके, ये एक स्टेटमेंट हो सकता है अब पे। सो अगर हम इसको बी सबसे पहले रख दें, देन नासा selected a 42 million, उसके बाद मिशन 40, NASA has selected a $42 million mission that will help the scientists understand weather system around our planet and ultimately forecast the vast space. C and D, B, A, C, D ऑप्शन कहीं है? सॉरी, एक सेकेंड, लेट मी रीड द स्टेटमेंट अगेन।
देखो बी ए तो करेक्ट मार्क किया था. नासा हैज सेलेक्टेड a $42 million mission that will help scientists to understand and ultimately forecast the vast space weather system around our planet. Okay, it's like DC, BADC. So BADC, option number A is the right answer. ठीक है. So it's the statement says like NASA has selected a $42 million mission that will help scientists to understand and ultimately forecast the vast space weather system around our planet. अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, vast space छूट रहा है, यहाँ पे planet एक conclusion दे रहा है, इसलिए C लास्ट में आ गया, D पहले आ गया. Now again question number 17 is the parajumble type question. Let's see इसका क्या आंसर हो सकता है. So since the 2000 word terror attacks, स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, एब्सोल्युटली स्टार्टिंग स्टेटमेंट लग रहा है ये. मेजर इवेंट्स हैव बीन डायरेक्टली अफेक्टेड ऑन द पेंटागन एंड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बाय द थ्रेट ऑफ द टेरर अटैक्स. नाउ अब देखिए जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है पहला, सो अगर एलिमिनेशन की बात करें तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बी बच गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा. लेकिन कैसे स्टेटमेंट बनेगा, लेट मी सी. तो ए के बाद आएगा सिंस द 2001 टेरर अटैक्स, सी बता रहा है वो, on the Pentagon and the World Trade Center, major events have been directly affected by the threat of the terror attacks. Okay, so option is B, that is A, C, B, D. So आपने एक भी प्रेडिक्ट कर लिया तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं. इसमें किस एग्जामिनेशन में, रोहतक में इजी वाले क्वेश्चन जो होते हैं वहां पे, जिपमैट में भी सेम फंडा, इजी वाले क्वेश्चंस में ऐसा होता है, और सीयूटी के हर प्रकार के क्वेश्चन में हो जाता है ये चीज, बिकॉज सीयूटी जनरली एक इजी पेपर होता है. इट्स नॉट अ वेरी टफ पेपर, इट्स एन इजी पेपर. इसका लेवल मॉडरेट तक भी पहुंचने में थोड़ा जोर लगा देता है. सो इट्स एन इजी पेपर. तो आपको सीयूटी में इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल सकते हैं, जिपमैट में मिल सकते हैं और रोहतक में मिल सकते हैं, बस शर्त पेपर इजी आया हो. क्वेश्चन नंबर 18, अगेन अ पैराजंबल टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्या होगा इसका आंसर, लेट hop into the options. Workplace efficiency and also to diminish the minor, a creative ideas in order to motivate his team. Mid one, problems with workplace and thus he should come with, no ये भी mid का statement है. Leaders should have the aim to improve, ये एक statement लग सकता है starting में, तो D वाला statement लगाते हैं. उसके बाद leaders should have the aim to improve problems with workplace and thus he should come with his own, मान लीजिए सी यहाँ पे लगाते हैं, with his own creative ideas in order to motivate his team. लेकिन ये फिर कहाँ चला जाएगा, तो leaders should have the aim to improve the workplace efficiency and also to diminish the minor, ये लगा दो, problems with the workplace, and thus he should come with his own creative ideas in order to motivate his team. So D, A, C, B. ओके, डी वाला एक ही ऑप्शन है, अगर आप डी भी देख लेते तो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाता. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, या 3 या 3 कुछ भी कह लो, इसीलिए मैंने 1 2 3 4 लिखा ही नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर 19 is again a parajumble type question. Just hop into the options. A option says, just hop into the statements. Is related with economics, psychology and to qualify. ये एक मिड स्टेटमेंट है. मोरालिटी, इनिशिएशन, डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड परसिस्टेंस विद, ये भी मिड स्टेटमेंट लगता है. मोटिवेशन इज वन काइंड ऑफ अ बिहेवियर ऑफ विच ऑफ मैन विच, ये एक स्टेटमेंट हो सकता है. लेट एक डिजायर ऑब्जेक्ट, हॉबीज, ये भी एक मिड का स्टेटमेंट है. सो ऑप्शन नंबर सी तो पहला हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद लेट्स रीड द अदर. ए से पढ़ते हैं. मोटिवेशन इज वन काइंड ऑफ अ बिहेवियर ऑफ अ मैन विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक, साइकोलॉजी एंड टू क्वालिफाई. सी ए हो गया, टू क्वालिफाई morality, initiation, direction, intensity and persistence with desired object, hobbies and the goals, hobbies, goals and the ideal activities. तो C, A, B, D ऑप्शन चेक करो यहाँ पे. C, A, B, D ऑप्शन नंबर डी, और C अगर आप चूज कर लेते तो आपको बाकी 3 एलिमिनेट दिख जाते हैं अपने आप ही. सो 4 इज द राइट आंसर. चौथा, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, C, A, B, D.
अगेन अ पैराजम्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट्स सी टू द स्टेटमेंट। कह रहा है affects the organizational development, okay, it's a mid statement, the functioning of modern organization is, ये एक हो सकता है बी, बट सी और डी पे देखना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद कंसिस्टेंटली, ये मिड स्टेटमेंट है। हाईली डिपेंडेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ, ये भी एक ऑफ लगाना लास्ट में, तो ये एक मिड स्टेटमेंट है। सो बी वाला तो इतना कंफर्म हो गया कि बी वाला है। अब इसमें ऑप्शंस अगर देखेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बी डी सी है या बी ए डी सी बचेगा। चेक कर लेते हैं। द फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न, हाँ, द फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, तो बी ये तो नहीं हो सकता है, हटा दो। अब क्या बचा, बी डी बचा। The functioning of the modern organization is highly dependent on the effectiveness of human resource management with consistently, the functioning of modern organization नहीं बैठेगा, okay, the functioning of modern organization is highly dependent, P के बाद D आएगा, highly dependent on the effectiveness of human resource management which consistently, C वाला हो गया, then A पे जाएंगे, affects the organizational development. So B, D, C, A is the right answer. That is option number 4. ठीक है, इजी क्वेश्चंस थे ये, मेनली जिप मैट रोहतक और सीयूटी के लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी 10 क्वेश्चन और हैं आगे। यप, सो रेफ्यूजेंट क्या कहेंगे इसे, इट्स रिफल्जेंट, रिफल्जेंट, इसका आपको एंटोनिम बताना है। अब इंपॉर्टेंटली क्या है कि रिफल्जेंट की मीनिंग क्या होती है। रिफल्जेंट इज समथिंग दैट इज वेरी bright and shiny, bright and shiny। अब इसका एंटोनिम मतलब जैसे समथिंग वेरी डार्क, लाउड, रफ, स्वीट हट जाएगा, डार्क बचेगा। ये इजी, अगर ऑप्शंस इजी हैं तो क्वेश्चन इजी बन जाता है, ऑप्शंस टफ हैं तो क्वेश्चन टफ बन जाता है। द होल थिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द ऑप्शंस दैट यू गेट इन द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 22, फीकंड मीनिंग नॉट फर्टाइल और इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, फीकंड इज इनफर्टिलिटी, तो इसका मतलब उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, दैट इज समथिंग दैट इज फर्टाइल। ठीक है, और यहाँ फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी से मतलब लैंड की फर्टिलिटी नहीं, इंसानों की फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी से मतलब है यहाँ पे। सो समथिंग दैट इज फर्टिलाइज, तो अगर इनफर्टिलिटी एंड इसकी देखें सो ऑप्शन नंबर बी विल रिटर्न ऑन स्टेराइल। ठीक है, टर्मोइल का मीनिंग होता है हॉच पॉच, टर्मोइल मतलब कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, नेसेसिटेट का मतलब नेसेसरी हो जाता है, प्रोपोलिक मतलब होता है कि तू किसी चीज को एक आगे रख देना, मतलब वी कैन से लाइक किसी इंसान, समवन और समथिंग को आगे रख देना, अपने से पहले वरीयता दे देना, या वी कैन से लाइक इंपॉर्टेंस दे देना, समथिंग और समवन को खुद से ज्यादा क्या देना, इंपॉर्टेंस दे देना। सो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, इनफर्टाइल स्टेराइल इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। इन दिस क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, 4 वर्ड्स दिए हैं, वी नीड टू फाइंड अ करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। इसमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, यूज है, मतलब ऑप्शंस में से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, वी नीड टू जस्ट टेल दैट। नाउ पहली स्पेलिंग की बात करूं, इस चैस्टिटी, नॉट चैस्टिटी, टीटी नहीं मतलब चैस्टिटी है। कोलैप्स इज राइट, तो ऑप्शन नंबर बी तो आंसर हो जाएगा। इट इज रेडियली, रेडियली, ठीक है, और ये क्या होगा, स्कैंशियन। ठीक, ये 3 मीनिंग्स, ये 3 वर्ड्स हैं जो कि इनकी करेक्ट स्पेलिंग मैंने आपको यहाँ लिख दी है, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोलैप्स। नेक्स्ट अगेन स्पेलिंग एरर टाइप क्वेश्चन, ब्रूनेट
ये हट जाएगा। निमोनिक्स, अब देखिए अगर आप निमोनिक्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा निमोनिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे आगे निमोनिक होता है एम, जो कि साइलेंट होता है। अबॉर्ड करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, अबॉर्ड बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। और ये कैरामेल है, कैरामेल। कैरामेल एक शुगर सिरप होती है जिसको गला जला के ब्राउनिश बना देते हैं, तो उसे कैरामेल कहते हैं। जैसे कैरामेल टॉफी आती है, कैरामेल चॉकलेट्स आती हैं, एंड कैरामेल की बहुत सी चीजें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अबोल्ड। निमोनिक की अगर मैं एक बार मीनिंग की बात करूं तो इट इज द आर्ट ऑफ लर्निंग समथिंग, कुछ भी आप लर्न कर सकते हैं निमोनिक टेक्निक लगा के, ठीक है, आर्ट ऑफ लर्निंग। ठीक। ब्रूनेट एक ब्रूनेट वी कैन से लाइक ब्राउन हेयर्ड गर्ल, ठीक है, ब्राउन हेयर, ब्राउन या आई थिंक ब्लॉन्ड हेयर, नहीं ब्लॉन्ड उसे कहते हैं, ब्राउन हेयर गर्ल, ब्राउन और आई थिंक रेडिश, रेडिश है, हाँ ब्राउन नहीं रेड है, रेड हेयर गर्ल, ब्रूनेट, कैरामल, कैरामल अबॉर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं, स्पेलिंग एरर, अगेन स्पेलिंग एरर। पहले की बात करूं तो इट इज फिडेलिटी, FIDELITY, फिडेलिटी। बी फॉलन, ये सबको पता होगा, बी फॉलन डबल एल एन होता है। प्रोबेबल इज द राइट, प्रोबेबल इज द राइट। नाउ व्हाट इज दिस, इट इज सैल्वेगर, डब्ल्यू की जगह वी हो। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दैट दिस प्रोबेबल। सो क्वेश्चन नंबर 26 इज अबाउट इडियम्स। मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन के टाइप लेके आया हूं जो भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, जो एक 30 क्वेश्चन के सेट्स में आ सकते हैं, वो टाइप्स मैं आपके लिए सारे लेके आया हूं। फिल इन द ब्लैंक्स भी है, इडियम्स भी है, इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैब, सब कुछ है। सो आपको एक कंप्लीट पैकेज में प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको मॉक का एक फुल एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। सो तो इसको आप प्लीज मॉक की तरह ही दीजिएगा, जैसे मॉक में नंबर मिलते हैं ना और कटते हैं ना, इसी तरीके से मॉक को मॉक की तरह ही देंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। मॉक अगर आप जनरल एग्जामिनेशन की तरह देंगे और लाइक कि चलो ठीक है कोई टाइम सेट नहीं करते हैं, ऐसे दे देते हैं, देखा जाएगा। हर क्वेश्चन का, एवरी क्वेश्चन शुड हैव अ सेपरेट टाइम अलॉटेड, 1 मिनट पर क्वेश्चन, हाफ मिनट पर क्वेश्चन, यू डिसाइड ऑन योर ओन, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। अ सी चेंज, व्हाट इज अ सी चेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ a sea change is a change in perspective, पर्सपेक्टिव चेंज। अगर किसी पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, पर्सपेक्टिव, व्हाट इज पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव इज वी कैन से लाइक देखने का नजरिया, एंड हिंदी में देखने का नजरिया कह सकते हैं, इंग्लिश में वी कैन से चेंज ऑफ थॉट्स, ठीक है। वी कैन से लाइक चेंज ऑफ थॉट्स। So perspective change is related to the change of thoughts, and a sea change is a perspective change or a change of thoughts. Now options की बात करूं तो इसकी मीनिंग ऑफ फास्ट चेंज नहीं हो सकती है, रेडिकल चेंज हो सकती है। कैसे हो सकती है, आई एक्सप्लेन यू। नॉमिनल भी नहीं हो सकती है, नॉमिनल और स्लो ये सब क्या, फास्ट नॉमिनल स्लो नथिंग, रेडिकल। अब रेडिकल का मतलब होता है, रेडिकल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पर्सपेक्टिव। कहते नहीं है कि द मूड हैज रेडिकली बीन चेंज्ड। ये रेड, अच्छा हाँ, एक चीज और, ये रेडिकल्स टेररिज्म वाले रेडिकल्स नहीं है जिसको टेररिस्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है। सो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज, विच विच वर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑप्शंस, और विच वर्ड इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ द थिंकिंग। यहाँ रेडिकल थिंकिंग से रिलेटेड है, नॉट टेररिज्म से। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इट्स सेइंग अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आई थिंक। A safe pair of hands. A person who does many jobs. Nope. A happy person. Nope. A person who guards someone. Nope. A reliable person. Yes. इसको भी गलत कर दिया। One sec.
अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स मतलब किसी के सेफ हाथ में है, मतलब अ रिलायबल पर्सन. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. ब्रेज द ट्रेल का मीन है टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो. एग्जाम्पल सेट कर देना ताकि अदर्स आपकी लीड फॉलो कर. ठीक है. सो ऑप्शन की बात करता हूं अगर मैं, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है टू रेज द एविडेंसेस, नोट्स, टू स्टार्ट अ मूवमेंट, मे बी टू पुट समथिंग टू फायर, नोट्स, टू विन अ केस इन द कोर्ट, नो. अब यहाँ पे टू स्टार्ट अ मूवमेंट है, ये मूवमेंट चलने वाला मूवमेंट नहीं है, इट्स लाइक अ भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, अगर आपने पढ़ा हो. मूवमेंट मतलब रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन. ठीक है. टू स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, इससे रिलेशन है ब्रेज द टेल, टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द अदर्स टू फॉलो. तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसकी मीनिंग को कॉन्टेक्चुअली सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जैक्टली नहीं कर रहा है, बाकी तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 29. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. हिट बिलो द बेल्ट. हिट बिलो द बेल्ट का कॉन्सेप्ट सिंपल है. जैसे आप बॉक्सिंग कभी देखी हो आपने, इन बॉक्सिंग देयर इज अ रूल दैट यू कांट हिट समवन बिलो द waist or belt. Okay, it's unfair. So hit below the belt will seem like unfair or cheating. So to do something thoroughly, ना, to strike unfairly, yes. मैंने अभी एग्जांपल आपको बॉक्सिंग का दिया, इससे रिलेटेड है ना, बॉक्सिंग. To end up in an awkward situation, no. To let someone commit mistake, nope. So option number B is the right option. To strike unfairly is to hit below the belt. Now the last question, that is idiom is given, have too many irons in the fire. कितना अच्छा स्टेटमेंट है, having too many irons in the fire. मीनिंग क्या होगी? To have an excessive number of simultaneous activities. To have high number of simultaneous activities. If you are doing many activities at a time, then it's called having too many irons in the fire. अब टू मेक टू मैनी enemies नहीं होगा, टेकिंग टू मच रिस्क बिल्कुल नहीं होगा, मेकिंग प्रोमिसेस दैट वन कैन नॉट कीप, ये भी नो. टू डू मेनी थिंग्स एट अ टाइम, यप. So option number D is the right answer. And here we finish our 30 question series for mock test 9. So this was mock test 9 for today. So we'll meet tomorrow with another mock test series, that is mock test 10. Till then, keep practicing the mocks. और जो मैंने आपको concepts कहे हैं पढ़ने के लिए for grammar, वो आप जरूर पढ़िए, because they are important. Verb, noun, articles and इसके relation में adjectives, ये बहुत important हो जाते हैं. Verb की मैं बात करूं तो subject, object और verb का relation ये important हो जाता है. इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग इन द सेशन. दिस इज निशांत श्रीवास्तव signing off for today. We'll meet tomorrow. Till then, keep learning and keep smiling. Thank you.